Good morning students, how are you? I hope you are fine. Students, now these days your first lesson the blind man and the elephant is going on. So today I am going to start the explain with Hindi meaning of this chapter. So look at the book seriously and listen to me. Once upon a time, there lived six blind men in a village. Once upon a time, six blind men are living in a village. One day, the villagers told them. One day, villagers are told them, hey, there is an elephant in the village today. Listen to me, there are an elephant is came in my village today. They had no idea what an elephant is. Villagers then said to that blind man that today an elephant is coming in the village. So the blind men have no any idea about the elephant. So they decided, even though we would not be able to see it, they decided to himself that they cannot able to see them, so they want to feel it anyway, means they want to take a chance to feel and able to see, because they are blind, so they cannot see the elephant, so they wanted to feel the elephants anyway. All them went where the elephant was. Now all the blind men go to the elephant where the elephant was. Every one of them touched the elephant. All the blind men touched the elephant. Here the elephant is a pillar. So when the blind men touched the elephants, then they discussed to each other our feelings after the touching the elephant. One blind man said to others, elephant is a pillar. Elephant is like a pillar, said the first man. First man said that elephant is like a pillar. Who felt the elephant's leg? Why the first man feel that elephant like a pillar? Because he touched the leg of the elephant. Then, oh no, it is like a rope, said the second man who cut the tail. But second man who cut the catch, second part form of the catch is cut the tail, then he felt that elephant like a rope. Oh no, it is like a thick branch of a tree, said the third man, stroked the trunk of the elephant. But third person who touched and feel the trunk of the elephant, that third blind person said that elephant like a thick branch of a tree. It is like a big hand fan, said the fourth man who touched the
ear of the elephant. But fourth blind man who touched the ear of the elephant, that blind person said that elephant like a hand fan. So today up to this line I am going to explain you, and rest of the lines explained in next video. So now I am going to tell you हिंदी मीनिंग विथ हिंदी एक्सप्लेन। अब हम आपको इसका हिंदी मीनिंग और उसका हिंदी एक्सप्लेन करेंगे। वंस अपॉन अ टाइम मतलब एक बार की बात है। वंस अपॉन अ टाइम मीन्स एक बार की बात है, एक बार की बात है। देयर लिव्ड, लिव्ड मतलब रहते थे, रहते थे। ब्लाइंड मतलब अंधे। मेन मतलब आदमियों, मतलब ये प्लूरल है। मैन का प्लूरल फॉर्म, मैन का प्लूरल फॉर्म क्या होता है? मेन होता है। तो क्योंकि इन द विलेज, विलेज मतलब गांव, क्योंकि वहाँ पे 6 अंधे लोग थे इसलिए यहाँ पर मेन आया। ब्लाइंड मेन मतलब अंधे लोग। एक बार की बात है, गांव में 6 अंधे लोग रहते थे। इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा? एक बार की बात है, गांव में 6 अंधे लोग रहते थे। वन डे, वन डे मतलब एक दिन, एक दिन। द विलेजर्स, विलेजर्स मतलब गांव वाले, गांव के लोग, गांव के लोग। टोल्ड, टोल्ड मतलब कहे, टेल मतलब कहना, टोल्ड मतलब कहे। ये पास्ट फॉर्म है। कहे, देम मतलब उनसे, ठीक है। एक दिन गांव वाले उनसे कहे, हे देयर इज एन एलिफेंट, एक इन द विलेज टुडे। एलिफेंट मतलब हाथी, जानते ही हैं। अरे आज गांव में एक हाथी आया है। दे हैड नो आइडिया, आइडिया मतलब विचार, मतलब उनको कोई जो है उस हाथी के बारे में कोई आइडिया नहीं था। वे हाथी के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। व्हाट एन एलिफेंट इज, कि हाथी क्या होता है। वे अंधे लोग हाथी के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे कि हाथी क्या होता है। दे डिसाइडेड, डिसाइडेड मतलब निश्चय किए, निश्चय किए। उन्होंने निश्चय किया। इवन दो, इवन दो मतलब यद्यपि। वी वुड नॉट एबल टू सी, एबल मतलब सक्षम, सक्षम। सी मतलब देखने में। उन्होंने यद्यपि ये तो डिसाइड कर लिया कि हम लोग क्या कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। क्या? क्योंकि वे अंधे थे। तो उन लोगों ने, 6 अंधों ने यह डिसाइड किया, यह निश्चय किया कि हम लोग नहीं देख सकते हैं, लेकिन लेट अस गो एंड फील इट एनीवे। एनीवे मतलब किसी भी तरीके से, किसी भी तरह से, किसी भी तरह से। तो उन्होंने यह सोचा कि हमको किसी भी तरह से चलना चाहिए और उन्हें फील मतलब अनुभव करना चाहिए, छूना चाहिए, अनुभव करना चाहिए। मतलब हाथी के बारे में हमको कोई आइडिया नहीं है तो हम लोगों को चलकर देखना चाहिए, क्योंकि हम लोग देख भी नहीं सकते, इसलिए कम से कम छू कर ही उनको अनुभव करना चाहिए। आखिर हाथी होता क्या है? ऑल ऑफ देम, उन सभी लोगों ने, मतलब वे 6 जो अंधे व्यक्ति थे, वेंट मतलब गए, वे 6 अंधे व्यक्ति गए। वेयर द एलिफेंट वाज, कहाँ गए? जहाँ पर वह हाथी था। एवरी वन ऑफ देम टच्ड, टच्ड मतलब छुए, छुए। टच मतलब छूना, टच्ड मतलब छुए, पास्ट टेंस में है। द एलिफेंट, प्रत्येक लोगों ने उस हाथी को छुआ।
अब देखिए क्या होता है छूने के बाद। हे द एलिफेंट इज अ पिलर सेड द फर्स्ट मैन। पिलर मतलब खंभा, खंभा। सेड द फर्स्ट मैन हु फेल्ट, जिसने अनुभव किया, अनुभव किया। द एलिफेंट्स लेग मतलब पैर। पहला अंधा व्यक्ति जिसने यह अनुभव किया, जिसने क्या किया, यह अनुभव किया कि हाथी क्या होता है, एक खंभा होता है, एक खंभे की तरह होती है, एक खंभा होती है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि उसने पैर को उसके छुआ था। हाथी को पहले जो है अंधे ने उसके पैर को छुआ था, इसलिए उसको लगा, उसने यह अनुभव किया कि हाथी क्या होता है, हाथी एक खंभा होता है। ओह नो इट इज लाइक अ रोप सेड द सेकेंड मैन। फर्स्ट मैन मतलब पहला व्यक्ति, पहला अंधा व्यक्ति, पहला व्यक्ति, ठीक ना। और सेड सेकेंड मैन मतलब दूसरा व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति। कट मतलब पकड़ा, कैच मतलब पकड़ना, कट मतलब पकड़ा, पकड़ा, ये भी पास्ट फॉर्म है, पकड़ा। द टेल, टेल मतलब पूंछ। दूसरा व्यक्ति, दूसरा अंधा व्यक्ति जो उसकी पूंछ को पकड़ा, उसने कहा कि अरे नहीं, यह तो एक रोप मतलब रस्सी, रस्सी की तरह होती है, होता है। क्या? हाथी एक रस्सी की तरह से होता है, क्योंकि उसने क्या किया था, उसकी पूंछ को पकड़ा था। ओह नो, अरे नहीं, इट इज लाइक अ थिक ब्रांच ऑफ अ ट्री। तो क्या है? थिक मतलब मोटी, ब्रांच मतलब टहनी या शाखा, ट्री मतलब पेड़। सेड द थर्ड मैन, थर्ड मैन मतलब तीसरा व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति यानी जो तीसरा व्यक्ति। स्ट्रोक्ड मतलब सहलाया, स्ट्रोक्ड मतलब सहलाना, सहलाना यानी हाथ से उसको छूना। ट्रंक मतलब सूंड, सूंड, ठीक ना, ऑफ द एलिफेंट। तीसरा अंधा व्यक्ति जिसने उसके सूंड को सहलाया, उसको जो है छुआ, उसने कहा अरे नहीं, यह तो एक मोटी डाली की तरह, एक पेड़ की मोटी डाली की तरह, शाखा की तरह होता है। कौन? हाथी। तो तीसरा, क्योंकि उसने जो है हाथी के सूंड को छुआ था, तो उसने कहा नहीं, हाथी तो पेड़ के मोटे शाखा की तरह से होता है। इट इज लाइक अ बिग हैंड फैन। हैंड फैन लाइक मतलब तरह, बिग मतलब बड़े, हैंड फैन मतलब हाथ वाला पंखा, हाथ वाला पंखा, यानी जिसको हम बेना कहते हैं, गांव घर में हम लोग इसको बेना बोलते हैं। यानी वह कहता है क्या कि इट इज लाइक अ बिग हैंड फैन, यह तो एक बड़े बेने की तरह होता है, हाथ वाले पंखे की तरह होता है। सेड द फोर्थ मैन, जो चौथा व्यक्ति था। सेड मतलब कहा, से मतलब कहना, सेड इसका सेकंड फॉर्म है, पास्ट फॉर्म है। फोर्थ मैन मतलब चौथा व्यक्ति। चौथा व्यक्ति ने कहा हु टच्ड, टच्ड मतलब फिर से बता देते हैं, छुआ। द ईयर, ईयर मतलब कान, ऑफ द एलिफेंट। चौथा व्यक्ति जिसने हाथी के कान को छुआ था, उसने कहा यह तो एक हाथ वाले पंखे की तरह होता है। हाथी कैसा होता है? हाथ वाले पंखे की तरह होता है। इन दिस वे बोथ explain of the Hindi and English is completed. Now it is time to homework for the students. So your homework is make and learn question answer from taught paragraphs and learn and write ticked English words with Hindi meaning on your rough copy.
आपका आज का होमवर्क रहेगा, जितना आपको पढ़ाया गया है उनमें से आपको क्वेश्चन आंसर बनाना है। मिनिमम 20 क्वेश्चन आंसर बनना चाहिए। और आपको जो वर्ड्स, हार्ड वर्ड्स इंग्लिश वाले टिक किए गए हिंदी मीनिंग के साथ, उनको भी आप हिंदी मीनिंग के साथ वर्ड्स को राइट करके लर्न करेंगे। अब आपको प्रॉब्लम आ रही होगी कि कैसे हम क्वेश्चन आंसर बनाएंगे, तो हम यहीं पर क्वेश्चन आंसर आपके लिए बनाकर बता देते हैं। जैसे यहाँ से आप क्वेश्चन बना सकते हैं, विच ब्लाइंड पर्सन said to the elephant is like a pillar। मतलब कौन सा अंधा व्यक्ति बोला था कि हाथी एक खंभे की तरह होता है? तो आप क्या कहेंगे, द फर्स्ट ब्लाइंड पर्सन said that elephant is like a pillar। पहला जो अंधा व्यक्ति था उसी ने तो बोला था कि हाथी एक खंभे की तरह होता है। इस तरह से आप जब सीरियसली इन सेंटेंसेस को पढ़ेंगे तो आप क्वेश्चन आंसर भी इजीली इसका बना सकते हैं। इन दिस वे आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। सो आई मीट यू रेस्ट ऑफ द पैराग्राफ्स इन द नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू टू ऑल फॉर टुडेज। हैव a nice day to all।